Hello students, today we are going to look for chapter number 4, simple equations, exercise 4.2, question number 2. Here you can see what is given. Give first the step you will use to separate the variable and then solve the equation. In short, what you have to do here, you have to find out the value of the unknown variable and then you have to solve the equation. So what we can do, how we can solve the equation is, first equation is 3l upon 3l is equal to 42. 3l is equal to 42. It means 3l is equal to 42. So this 3 and l are in multiplication. 3 कहाँ चला जाएगा? 42 के नीचे चला जाएगा. So l is equal to 42 upon 3. l is equal to 42 upon 3. Now just you have to divide 42 divided by 3. You will get the value of L. You will get the value of L. So 42 divided by 3 कितना हो जाएगा? 42 divided by 3. 3 ones are 3. 4 minus 3 1. 2 down. 3 fours are 12. Okay. So the answer is 14. It means the value of L is what? 14. The value of L is 14. Let us move to the second question. B upon 2 is equal to 6. B upon 2 is equal to 6. How we can solve this question? So it is very simple. B upon 2 is equal to 6. Here no denominator is there, so you can include 1 as your denominator. Then what you can do? What you have to do is क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. सो b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. b 1 जा b एंड 2 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 6 जा 12. सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. b इज इक्वल टू 12. जस्ट आपको कुछ नहीं करना. डिनोमिनेटर यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो हमने 1 लगा दिया. उसके बाद क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है. तो b 1 जा b एंड 2 6 जा 12. So this is the solution. We have to just find out the value of unknown variable. We got b is equal to 12. Third one, p upon 7 is equal to 4. Now see here again the same thing what we have seen in question number b. क्या करेंगे हम? p upon 7 is equal to 4. देखो यहाँ पे भी हमारे पास डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर 1 ले लेते हैं. 1 लेने के बाद आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है. p 1 जा p, 7 4 जा 28. So the value of p is what? 28. तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपको इस तरीके से डिवीजन में आपको वेरिएबल दिया हो और उसके सामने कोई वैल्यू दिया हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में 1 लगाएंगे और उसके बाद हम सेकंड स्टेप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे. देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल. सो हियर द वैल्यू ऑफ p इज 28. Fourth question, 4x is equal to 25. 4x is equal to 25. See, this is like A1. How we have done the question number A, उसी तरीके से करना है. देखो यहाँ पे आपके पास अननोन वेरिएबल क्या है? x है. तो हम क्या करेंगे? 4x is equal to 25. x को हमें ढूंढना है, तो x को आपको क्या करना होगा? उसके साथ कोई भी कोएफिशिएंट और कोई भी दूसरा जो साइन है वो भी अटैच नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पे 4 इज़ इन मल्टीप्लिकेशन विथ x. तो आप क्या करो? 25 अपॉन 4 कर दो. 25 अपॉन 4. अब आपको क्या करना है? 25 डिवाइडेड बाई 4 करना है. सिंपली 25 डिवाइडेड बाई 4. ओके, वो सब कर लेंगे. 25 डिवाइडेड बाई 4, 4 6 जा 24 एंड 1 लेफ्ट. So here we got the mixed fraction as our answer, that is 6 whole 1 upon 4. So like these type of questions, what you have to do? Simply you have to sand whatever coefficient is there, you have to sand on the other side in the denominator and then you can divide and you will get the answer. X is equal to 6 whole 1 by 4 is our answer. Let us see the next question. E 8y इज इक्वल टू 36. अगेन जो हमने पिछले करे उन्हीं की तरीके से होगा. यहाँ पे हम क्या करेंगे? 8y इज इक्वल टू 6. इट मीन्स y के साथ जो भी कोएफिशिएंट अटैच है वो कहाँ पे चला जाएगा? हमारा
सेकंड RHS में डिनोमिनेटर में चला जाएगा. 36/8 यू हैव टू कैंसल इट. सो इट विल गो विथ विच टेबल? 4. 4 2s are 8 and 4 9s are 36. So y is equal to 9/2. Y is equal to 9/2. It means you have to divide and you will get what? You will get a mixed fraction. You will get a mixed fraction, that is what? Y is equal to 9/2. So 2 4s are 8 and 1 left. This is the value of y. Let us move to next question. F that is to 5/4. सी अगेन यहाँ पे पिछले क्वेश्चंस की तरीके से ही है, लेकिन पिछले क्वेश्चंस में क्या था, उसमें डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं दिया था. RHS में तो हमने 1 लिया था, लेकिन यहाँ पे दोनों साइड आप देख सकते हो डिनोमिनेटर्स दिए हैं. तो व्हाट वी हैव लर्नड, यू जस्ट हैव टू डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. ओके, z/3 इज इक्वल टू 5/4. इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो कितना मिलेगा? 4 × z, दैट इज 4z इज इक्वल टू 3 5s are 15. 3 5s are 15 एंड देन z इज इक्वल टू 15/4. Let us look this question. See, z/3 is equal to 5/4. Cross multiplication. 4z is equal to 5 3s are 15. Then what you have to do is z is equal to 15/4. So you have to divide it. So it will be like what? 4 3s are 12. 15 minus 12. How much left? 3 left. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 3. दिस इज़ माई रिमाइंडर. दिस विल बिकम न्यूमरेटर. जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो नीचे आ जाएगा. फाइन. एंड जो भी आपका क्वेश्चन आया है वो आपका होल नंबर बनेगा. सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर. z इज इक्वल टू 3 होल 3/4. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. a/5 इज इक्वल टू 7/15. अगेन देखो यहाँ पे क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 15a इज इक्वल टू 7 5s are 35. सो किस तरह से करेंगे? a इज इक्वल टू 35/15. 35/15. सी बोथ द नंबर्स आर गोइंग विद द टेबल ऑफ 7. दे आर गोइंग विद द टेबल ऑफ 7. सॉरी, दे आर गोइंग विद द टेबल ऑफ 5. तो हम क्या करेंगे? 5 7s are 35 एंड 5 3s are 15. 7/3 ये क्या है आपका? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम मिक्स्ड बनाएंगे. किस तरीके से बनाएंगे? 3 1s are 3 और यू कैन टेक 3 2s are 6 एंड 1 लेफ्ट. सो 2 whole 1/3. 2 whole 1/3. दिस विल बी योर फाइनल आंसर. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. 20t इज इक्वल टू -10. तो देखो यहाँ पे आपको किसका वैल्यू फाइंड करना है? t का वैल्यू फाइंड करना है. तो इसके साथ जो भी कोएफिशिएंट है वो RHS में डिनोमिनेटर में चला जाएगा. वेरी सिंपल क्वेश्चंस. ओके, एंड दे आर वेरी स्कोरिंग क्वेश्चंस. -10/20 इस तरीके से हो जाएगा हमारा. ठीक है, अभी 10 के टेबल में 20 कभी आता है? 10 1s are 10 एंड 10 2s are 20. और जो माइनस है वो तो आपको लगाना ही पड़ेगा. So the value of t is what? It is -half. Fine. See, now let us see the next question number 3. Solve the equations. देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है? 3n - 2 इज इक्वल टू 46. तो यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है? 3n के साथ जो भी नंबर अटैच है उसको हमें सेकंड साइड यानी RHS भेजना होगा. तो किस तरीके से करेंगे हम? 3n इज इक्वल टू 46 plus 2. Fine. So therefore 3n is equal to, see this is -2, तो हम दूसरी साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा? +2. 46 plus 2 is 48. Therefore n is equal to 48/3. ये चीज़ जो है ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 में अभी देखा. ठीक है, सो 48/3 इसको आपको डिवाइड करना है. तो हम डिवाइड करते हैं. 48/3. 3 1s are 3, 4 - 3 1, 8 down, 3 6s are 18. So the answer is what? It is 16. This is the value of
n. Fine. This was all about first question. Let us see the second one. See 5m. अगेन यहाँ पे जो +7 है ये RHS में जाएगा तो ये क्या बन जाएगा -7. प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा. 5m is equal to 17 minus 7 is 10. Therefore m is equal to 10. This will go in upon, okay, in division. 5 ones are 5 and 5 twos are 10. Fine. Third question. 20p upon 3 is equal to 40. Questions I have told you. यहाँ पे आपको क्या करना है, अपॉन 1 लगाएंगे हम. जब कोई भी डिनोमिनेटर नहीं दिया है तो आपको अपॉन 1 लगाना है. उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. देयरफॉर 20p 1s are 20p 3 40s are 3 multiply 40. Therefore 20p is equal to quick multiplication. 3 4s are 12. 1 0 as it is. Now you have to find out the value of p. So 20 will go down. 0 and 0 cancel. In 2's table when 12 is coming, 2 6 are 12. So your answer is what? P is equal to 6. Very simple. Then next question, it is same like this. Okay, let us try to calculate. No value, no denominator, put it 1. Do what? Cross multiplication. Therefore 3p multiply 1, 3p is equal to 10 6 are 60. Therefore p is equal to 60. 3 will go down. 3 के टेबल में when 60 is coming, 3 2s are 6, 3 0s are 0. The answer is p is equal to 20. Now let us see question number 4. 10p is equal to 100. See, it is again very simple. In question number 4 you have to solve the equations and you have to find out the unknown variable. So here what is my unknown variable? It is p. देखो सिंपल ही है, हमने जो पहले करा वही करना है. 10 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में. सो 10 के टेबल में व्हेन 100 इज कमिंग, 10 10s are 100. देयरफॉर वैल्यू ऑफ p is 10. Fine. Value of p is 10. Let us see the next question. 10p plus 10 is equal to 100. सी यहाँ पे क्या दिया था, 10p इज इक्वल टू 100 दिया था. इस क्वेश्चन में क्या मॉडिफिकेशन करा है, क्या चेंज करा है, +10 यहाँ पे ऐड कर दिया. तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, +10 को हम RHS में भेज देंगे. RHS में अगर हम भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा -10. प्लस विल बिकम माइनस. नाउ 10p इज इक्वल टू 100 minus 10 is 90. You have to find out the value of p. So p is equal to 90 upon 10. 10 will go down. 10 के टेबल में when 90 is coming, 10 9s are 90. So value of p आपका कितना आएगा, 9. Let us see the next question. p upon 4 is equal to 5. Now see again, here no denominator is there, it means it is 1. Then what you have to do, cross multiplication. So p multiply 1 is p. 4 5s are 20. ओके, डायरेक्ट आंसर मिलेगा. देखो आपको p इज इक्वल टू 20. नेक्स्ट क्वेश्चन, -p अपॉन 3 इज इक्वल टू 5. ओके, -p अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 1. एज वी हैव डिस्कस, नो डिनोमिनेटर, अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो व्हाट विल हैपन, -p 1s are -p. ओके, माइंड वेल, आपको जो भी साइन दिया है वो आपको एज इट इज़ लेना है. देखो अगर इधर -1 होता तो ये क्या हो जाता, माइनस माइनस प्लस हो जाता. लेकिन एक ही माइनस है तो यहाँ पे p के साथ माइनस हमारा कैरी फॉरवर्ड होगा. ओके, 5 3s are 15. 5 3s are is what? It is 15. We got the answer.
ओके। अब लेकिन हाँ, यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है, p के पास जो नेगेटिव साइन है वो इस वैल्यू को हम दे देंगे, ठीक है। सो आंसर आपका फाइनल क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू -15, ये आपका फाइनल आंसर होगा। अगर देखो यहाँ पे भी -15 होता तो p का वैल्यू पॉजिटिव आता, बिकॉज माइनस एंड माइनस कैंसिल हो जाता, लेकिन एक ही माइनस साइन है तो इसको आपको जो वैल्यू है उसमें हम दे देंगे। सो p इज इक्वल टू -15, इट इज़ लाइक -1, ओके। सो -1 यहाँ पे आ जाएगा हमारा और इसके साथ अटैच हो जाएगा। सो p इज इक्वल टू -15 करते हैं। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3p/4 इज इक्वल टू 6. What you have to do in this question, you have to do again upon 1 and then cross multiplication. 3p 1s are 3p, 4 6s are 24. Value of p is equal to 24/3. 3 8s are 24. Next question, 3s is equal to -9. See now here only one minus is there, so in answer minus will be coming. अगर दोनों साइड माइनस होता तो आंसर आपका पॉजिटिव आता। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, 3 को डाउन भेजेंगे, -9/3, 3 3s are 9, -3, ओके। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, माइनस नहीं लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि एक ही माइनस है। अगर 2 माइनस होते तो वो प्लस हो जाता। सो 3 3s are 9, -3, s इज इक्वल टू -3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3s + 12 इज इक्वल टू 0. How we can do this? 3s is equal to 12 will go other side. It will become -12. 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। s is equal to -12/3. This 3 will go down. 3 1s are 3, 3 4s are 12, -4. So s is equal to -4. s is equal to -4. नेक्स्ट क्वेश्चन, 3s इज इक्वल टू 0. देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है जहाँ पे आपको इज इक्वल टू में 0 दिया है और यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लिकेशन के अलावा प्लस माइनस में कुछ भी अटैच नहीं है तो उसका वैल्यू डायरेक्टली आप 0 लिख सकते हो, फाइन। तो यहाँ पे देखो अगर हम पूरा कैलकुलेट करें तो ये क्या हो जाएगा, 0 एंड 3 विल गो डाउन, 0/3, 0/3 क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि कोई भी नंबर का 0 के साथ हमारा डिवीजन कितना आता है, 0, तो s 0. I hope everybody got and understood whatever I have taught in this video. Thanks for watching.